उसका आंसर बहुत पहले निकल गया था, so I'll just check that and do that. सब दी हुई है, आपने आंसर की, मैंने चेक कर ली क्वेश्चन। हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो ग्रुप पे डाली थी मैंने, उसमें से चेक कर लिए। ओके ओके ओके। सो नेटवर्क इशू हो रहा था तो कॉल कट की थी। राइट। ओके, हाय, गुड इवनिंग प्रतीक एंड ऑल। ठीक है, ऑलराइट, आई गेस आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है एंड यू कैन ऑल सी apparently a black screen right now, nothing else. So in the last class, can you give me a quick recap? हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, फटाफट बता दो। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था? So we are done with the, yeah, we are done with the ribosomes and cytoskeleton. True, cytoskeleton. अगर मैं आप लोगों से पूछ गया cytoskeleton के अंदर you have a 3 filaments you get to see over there, macrotubules, intermediate and macrofilament. आप बता सकते हो कि आपका माइक्रोफिलामेंट किससे बनता है या कौन से मोनोमर से बनता है? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनेगा? माइक्रोट्यूब्यूल में आपको कौन सा मोनोमर लगा होगा? वेरी ट्रू, वेरी गुड, ट्यूबुलिन। एंड इन तीनों में अगर मैं देखा है तो किसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा? किसका डायमीटर आपके सबसे ज्यादा होगा? Microtubule. Very good, बहुत बढ़िया, right. That is also going to be a microtubule is going to have the one of the largest diameter. True, ठीक है। लोकोमोशन के लिए यूज किए जाते हैं साइटोस्केलेटन। They can maintain the shape of the cell. Anything else? It maintains stability. Stability के लिए, मैकेनिज्म के लिए, Structure. मेंटेन करने के लिए। They are also macro. अच्छा, अगर मैं बात करूँ specific macrotubules की, so they also become a part of my flagella and cilia. They also happen to become a part of your flagella and cilia. तो ये चीज रखना, आपके macrotubules आपके flagella और cilia का part बनेंगे। So that's one thing you'll get to see. ये हमने कर लिया था, ribosomes हमने कर लिए थे। यहाँ पे ribosomes का that is something quite simpler one part था ribosome का, so we have done that. Now let's do one thing. Let's jump onto your flagella cilia, जिसका हमने एक small portion कल की क्लास में देखा था, and then we'll just add some more things into that. So we'll quickly jump on that and then we'll go beyond this. ठीक है, so I guess सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। You can see the macula in front of you right now, and now we'll add some few more things in this. ठीक है, so ये हमने किया था HIV के बारे में बात किया था, हमने बात किया था WBC के बारे में। ना इवन द WBC वाला जो पार्ट है, ये अभी तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में आप इसका कोई ज्यादा रिलेशन है नहीं, बट आप याद रख सकते हो कि ये आज नहीं तो कल आपके सामने वापस आएगा, राइट? यू विल अंडरस्टैंड WBCs। एक्चुअली जब आप चैप्टर 18 पढ़ोगे तब आप WBC के बारे में पढ़ोगे। सो ट्राई टू गैदर ऑल दोस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये बड़ी हेल्प करती है इम्यून सिस्टम समझने के लिए। If you have a high amount of WBC, then you have an infection. If you have a low count, it can also be a matter of concern, which can be seen happening in your HIV. Leukemia भी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि this is nothing but a blood cancer. Excuse me, cilia and flagella हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, and we have seen कि कहाँ पे आपको मिल रहा है देखने के लिए human sperm, and then you have a cilia in the respiratory tract and even the fallopian tube. You get to see that. The other things you are going to find them जहाँ पे आपका cilia आपको देखने के लिए मिल जाएगा। Flagella, human sperm हम देख चुके हैं, and you can also find them in some protozoans as well. ये हमने देखा था कल की क्लास में। यहाँ पे हम बात कर रहे थे GI tract की of your goat, of your herbivore, as well as your GI tract of your carnivore, जिसमें goat का ज्यादा लेंदी होगा GI tract, which makes sense क्योंकि वो cellulose पे फीड कर रहा है। Alright, so let's jump on your okay, so over here. ये हमें करना है यहाँ पे। So we'll be starting with the understanding of my, हमने cilia और flagella के यहाँ पे examples हमने देख लिया, कहाँ पे क्या मिल रहा है वो हमने यहाँ पे देख लिया था। अभी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे something in terms of your flagella
राइट, एंड विल ट्राई टू सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई विल गेट टू सी इन फ्लैजेला। तो फ्लैजेला को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, और हमें एक्चुअली में ये पिक्चर को समझना है, इस पिक्चर में क्या है क्या नहीं उसे हमें देखना है, और इसके लेबलिंग हमें याद रखना है। सो दीज आर द थिंग्स विल ट्राई टू डू इन दिस क्लास एंड विल गो बियॉन्ड दैट। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा अगर आप किसी फ्लैजेला को ऑब्जर्व करते हो? अगर मैं आपको कोई फ्लैजेला देता हूँ किसी ऑर्गेनिज्म में से निकाल के अगर आपके हाथ में देता हूँ, और अगर आप उसका सेक्शनिंग करके अगर ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। याद रखना, अगर आप फ्लैजेला को ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, देन यू गेट टू सी सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब जब आप ये फ्लैजेला को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? यू कैन सी रिंग्स। आपको कई सारी आपको यहाँ पे रिंग्स दिख रही है, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रिंग्स की, तो याद रखना आपको रिंग्स यहाँ पे पैर में दिख रही है। So you have this one pair, then you have another pair over here. और ये जो रिंग्स है पैर में, you can call them as a doublet of microtubule. You can call them as a doublet of microtubules. इसको हम बोलते हैं, जो आपकी जो पैर में आपको जो यहाँ पे रिंग दिख रही है, you call them as a doublet of microtubules. So that's one thing you have to know. एक टर्म आप यूज करो, यू कॉल them as a doublet of microtubules, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पेरिफेरियल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, क्योंकि वो दो के उसके अंदर है। दैट्स वन थिंग। अब अगर हम यहाँ पे इन रिंग्स को देखेंगे, तो ये रिंग्स आपको जो पेरिफेरी में जो आपको दिख रही है, अगर आप इनको काउंट करते हो तो इनका नंबर आएगा यहाँ पे 9। दैट विल बी 9 नंबर, सो इट विल बी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको यहाँ पे 9 रिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गई, जो आपके पेरिफेरी में लगी हुई है, और वो दो के अंदर लगी हुई है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेंटर में भी कुछ है आपके पास। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो गेट टू सी समथिंग इन द सेंटर। अब सेंटर में भी आपको 2 रिंग दिख रही है यहाँ पे, एंड दोस 2 रिंग्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज। ये जो आपकी जो 2 रिंग है यहाँ पे, ये आपकी कनेक्टेड एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ योर ब्रिज। तो यहाँ पे एक आपका ब्रिज है जिसके थ्रू ये आपकी 2 रिंग यहाँ पे आपकी कनेक्टेड रहती है। तो 2 रिंग आपके बीच में है, 9 रिंग या 9 रिंग के जो पैर है वो आपके पेरिफेरी के अंदर है। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन रहा है, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 9+2 अरेंजमेंट। दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ 9+2 अरेंजमेंट, जो आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर माइक्रोट्यूब्यूल, इन योर पर्टिकुलर फ्लैजेला और सीलिया। अगर आप उसका सेक्शनिंग करोगे और अगर उसे आप ऑब्जर्व करते हो, आपको ये स्ट्रक्चर वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा काफी क्लियरली। अब एक चीज याद रखना, हमने अभी भी बात किया था कि फ्लैजेला और सीलिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल। सो यू गेट टू सी माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए फ्लैजेला और सीलिया के अंदर। सो आई थिंक इट मेक्स सेंस कि यहाँ पे भी आपको जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है, उसके अंदर भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे मिलेंगे। सो ये जितनी भी रिंग्स है, दोस रिंग्स आर नथिंग बट रिंग्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स की यहाँ पे रिंग बनी हुई है, ठीक है। ये चीज आप याद रखो कि यार यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल की रिंग यहाँ पे बनी हुई है। फ्लैजेला का काम होता है लोकोमोशन। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फ्लैजेला राइट नाउ। इसका काम होता है लोकोमोशन, ये मूव करने में हेल्प करेगा। सो बेसिकली इट विल बी मूविंग ऑल द टाइम। इसका काम तभी होता है जब ये मूव करता है। सेम गोस फॉर सीलिया एज वेल। चाहे सीलिया लोकोमोशन के लिए डायरेक्टली हेल्प प्ले नहीं कर रहा, लेकिन वो आसपास के एरिया को मूव कराता है। So इसलिए फ्लैजेला एंड सीलिया विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग सो दैट दे कैन डू देयर पर्पसेस, राइट, दे कैन डू देयर जॉब। तो इसको हम समझेंगे कि यार ये करने के लिए आपको क्या क्या लग सकता है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू सी सम बेसिक स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फ्लैजेला आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्रोटोजोन्स एंड एल्गे। ह्यूमन सेल विल हैव फ्लैजेला, लेकिन वो आपको मिलेगा ह्यूमन स्पर्म के अंदर। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ह्यूमन स्पर्म में आपको फ्लैजेला देखने के लिए आपको मिल जाता है। क्या वहां पे मुझे काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे? विल आई गेट टू सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया मुझे ह्यूमन स्पर्म में मिलेंगे काफी अच्छे, या नहीं मिलेंगे? Yes, sir. Yes, you will get plenty of mitochondria beta because you need to generate energy ताकि आपका फ्लैजेला उस एटीपी को यूज करके मूव कर सके। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे काफी सारे मिल जाते हैं because Yes, sir, मिलेंगे। यहाँ पे एटीपी and you can use that so that you can make your flagella work. So you will get to see that. Flagella आपके generally लेंगे longer than the cilia. So just see, one thing. Yeah, I just want to check the chat part. ठीक है. Flagellas are always going to be longer than cilia. That's one thing you have to know. They consist of 2 central microtubules, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, 2 central microtubules and 9 pair of peripheral microtubules, जो हमने यहाँ पे देखे थे। आप यहाँ पे काफी क्लियरली यहाँ पे ये दिख जाते हैं। यहाँ पे सेंट्रल में आपको 2 मिल जाए,
और बाकी आपके 9 पेयर आपको यहाँ पे मिल जाए पेरिफेरल के अंदर। देन द सेंट्रल पार्ट इज आल्सो नोन एज एक्सोनिम। सो एक्सोनिम इज गोइंग टू बी अ सेंट्रल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल कोर is known as your axoneme. So that is one thing you have to know. The central microtubule are enclosed by a central sheath and connected by a bridges. अगर आप इसे यहाँ पे देखते हो, ये जो रेड कलर का जो आपका यहाँ पे पार्ट है, the red part over here is nothing but my central sheath. ये जो रेड वाला आपका यहाँ पे पार्ट है, that is going to be your central sheath. एंड आपको जो दो यहाँ पे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सेपरेट, जो इंडिपेंडेंट आपके यहाँ पे है, उनको कनेक्ट करें आपके यहाँ पे ब्रिज, वही उस स्टेटमेंट में वहां पे मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है। अब मुझे आप एक और पिक्चर देख के यहाँ पे बताओ, ये सेम है जो वहां पे आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे भी वही है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी माय 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि वहां पे काफी कुछ मैं लिख चुका हूँ। आप मुझे ये बताओ, क्या मुझे दिख रहा है कि मेरे सारे डबलेट एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है? Can I say that all my doublets over here are connected to each other? क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूँ उन्हें? Yes. Yes, I can see them, right? All ये जितने भी मेरे यहाँ पे doublets है, वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे connected है. So they are always going to be connected to each other. और ये connected जो यहाँ पे हो रहा है, connection जो आपके यहाँ पे हो रहा है, इससे हम बोलते हैं linker. आपका यहाँ पे जो linker है, linker की मदद से ये लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे connected है। उसके अलावा अगर आप एक एक डबलेट के पैर को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि ये सब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं सेंट्रल शीट के साथ। यहाँ पे जो आपको बड़ा सा लाइक रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके थ्रू दे आर कम्युनिकेटिंग और इंटरेक्टिंग विद द सेंट्रल शीट। तो जितने भी मेरे डबलेट यहाँ पे है, वो आपके इवन कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को विद द सेंट्रल शीट। और सेंट्रल शीट के साथ जब ये कनेक्शन जब वो बना रहे हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा रेडियल स्पूक्स। कॉल हिम एज अ रेडियल स्पूक्स, राइट? सो रेडियल स्पूक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो रेडियल स्पूक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए। याद रखना रेडियल स्पूक्स का काम क्या होता है। ये जो डबलेट है, ये जो एक सिंगल जो आपके जो दो वहां पे लगे हुए आपके दो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो पैर लगा हुआ है, वो कनेक्ट कर रहा है आपके सेंट्रल शीट के साथ। दैट इज कनेक्टिंग विद द सेंट्रल शीट। और उसे हम बोलेंगे ये जो कनेक्शन जो यहाँ पे बन रहा है, वो होता है आपका रेडियल स्पूक्स। रेडियल स्पूक्स के थ्रू वो वहां पे कनेक्टेड है। लिंकर आपको कनेक्ट कर रहा है, हर एक डबलेट एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द लिंकर। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे we'll have a look at this again. यहाँ पे जी देखते, जी में क्या लिखा हुआ है? The peripheral 9 pair of microtubules are connected to central sheath by radial spokes. So radial spokes के थ्रू वो कनेक्टेड है सेंट्रल शीट के साथ। हाँ जी बेटा बताइए। You'll have to repeat yourself in case if I have missed out something. ठीक है, so this is something you have to know. उसके बाद let's have a look at the H and I. H में आपको यहाँ पे क्या है? Doublets are connected to each other with the help of the linker. Doublet आपके एक दूसरे से यहाँ पे connected है with the help of the linker over here, right? And I वाला part हमें देखना पड़ेगा थोड़ा। ये आपका NCERT में नहीं है, बट आप ये ध्यान रख सकते हो कि ये है क्या। Another protein called as dynein is associated with each of the पेरिफेरियल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो हम यहाँ पे देखिए डायनिन यहाँ पे क्या है। सबसे पहले एक आपका प्रोटीन है यहाँ पे डायनिन करके, ये आपके हर एक पेरिफेरियल डबलेट के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन ये कि इसका काम क्या होता है? इसका काम यहाँ पे याद रखना पड़ेगा हमें। इसका काम होता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस। डायनिन जो आपका यहाँ पे है, याद रखना इसका काम होगा आपका एटीपी हाइड्रोलाइसिस। देखो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि आपका जो यहाँ पे फ्लैजेला है, वो एटीपी कंज्यूम करेगा हमेशा, और जब तक वो एटीपी कंज्यूम कर नहीं रहा तब तक वो मूव नहीं कर पाएगा। तो एटीपी बर्न करने के लिए आपका यहाँ पे डायनिन प्रोटीन आपका यहाँ पे बड़ी हेल्प कर रहा है। सो डायनिन प्रोटीन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करने या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिसके वजह से आपके जो फ्लैजेला है या आपका सीलिया है वो मूव कर पाता है। याद रखना फ्लैजेला सीलिया ने हमेशा एनर्जी कंज्यूम करनी है टू मेक द मूवमेंट हैपन, और वो आपकी होती है बिकॉज ऑफ योर डायनिन, क्योंकि डायनिन हेल्प करता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, डायनिन विल गेट टू सी डायनिन ओवर देयर एंड विल हेल्प इन एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो इस पिक्चर में देखते हैं, इस पिक्चर में अगर आप यहाँ पे देखोगे यू विल गेट टू सी दैट ये जो ब्लू वाले जो एरियाज है ना, ये ब्लू वाले जो ऐसे लाइक ग्रेप्स जैसे बाहर निकले हुए हैं, दे आर ऑल माय पर्टिकुलर डायनिन, दे आर ऑल गोइंग टू बी माय डायनिन प्रोटीन। ये मेरे डायनिन प्रोटीन है यहाँ पे, और इनका काम रहेगा आपका एटीपी हाइड्रोलाइसिस। देयर वर्क इज गोइंग टू बी योर एटीपी हाइड्रोलाइसिस, राइट?
तो आपको इस टीएस के अंदर आपको इस पिक्चर को याद रखना है एंड यू हैव टू नो कि कहाँ पे क्या चीज आपके यहाँ पे लग रही है। रेडियल स्पूक्स आपके कनेक्ट करें सेंटर में, सेंट्रल शीट में आपको 2 मिल रहे हैं आपके इंडिपेंडेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स, बाकी सारे हैं आपके डबलेट के अंदर। सो आपको 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ पे याद रखना है आपको हमेशा। समथिंग विल गेट टू सी इन फ्लैजेला एंड सीलिया, ठीक है। उसके बाद आप बस याद रखो कि यार लिंकर क्या कर रहा है, लिंकर कनेक्ट कर रहा है आपके सारे जो आपके डबलेट है उन्हें एक दूसरे से वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। डायनिन यहाँ पे क्या कर रहा था, डायनिन इज समथिंग व्हिच विल प्ले अ रोल इन माय एटीपी हाइड्रोलाइसिस एंड देन यू हैव अ रेडियल स्पूक्स जो आपको बीच में कनेक्ट कर रहे हैं टू द सेंट्रल शीट। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे आपको याद है, दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट। और जो लिंकर प्रोटीन आपको जो मिल रहा है वो प्रोटीन का नाम होता है नेक्सिन। अब इतना अगर आप याद रख सकते हो दैट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं रख सकते देन कंप्लीटली फाइन, बट दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन योर माइक्रो, दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन योर फ्लैजेला। इवन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, इनको हमने नाम दिए हुए, यू हैव अ ए ट्यूब्यूल एंड अ बी ट्यूब्यूल, यू हैव अ ए ट्यूब्यूल एंड अ बी ट्यूब्यूल। क्या सबको यहाँ पे ए एंड बी ट्यूब्यूल यहाँ पे लेबल करा हुआ दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Right. sir. Now tell me something, ए और बी में से कौन सा कंप्लीट है और कौन सा इनकम्प्लीट है? ऐसा है ना, एक पूरा बना हुआ है और दूसरा जो है उससे अटैच है। Sir, A complete सर है. ए कंप्लीट है। Sir, ये A बिल्कुल सर ए कंप्लीट है, बी इनकम्प्लीट है। राइट, हाँ जी, ए आपके यहाँ पे कंप्लीट है और बी आपके यहाँ पे इनकम्प्लीट है, राइट। अब ये जो बात है ना, ये सारी जो बात होती है वो नीट में नहीं आती, बट अगर आप फ्यूचर में कोई एग्जाम देते हो लाइक एनएससीबी अगर आप एग्जाम देते हो, अगर आप ये एग्जाम अगर आप देते हो जो आपके स्कूल के थ्रू आपकी होगी, देन इन दैट केस यू माइट गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। जो अगर इससे नीट के ऊपर के अगर आप लेवल के अगर आप एग्जाम देने जाते हो देन दे माइट आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बट या ओवर हियर इन कॉन्टेक्स्ट टू नीट दैट इज नॉट समथिंग व्हिच माइट बिकम पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। सो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए एंड दैट इज योर 9+2 अरेंजमेंट। इतना ही आपको याद रखना है फ्लैजेला के अंदर। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ फ्लैजेला। सो आई होप दिस इज द पार्ट व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर। Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर। Let's move on to something else. So this is going to be your flagella. So एक बार फिर यहाँ पे देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 पॉइंट्स आपके काफी सिंपल है कि कहाँ कहाँ आपको फ्लैजेला यहाँ पे मिल जाए। ये याद रखना है 9+2 अरेंजमेंट आपका है बिकॉज यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। आपको क्वेश्चन इसके बेस्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। सेंट्रल कोर को हम यहाँ पे एक्सोनिन यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ। Central microtubules are enclosed by a central sheath and connected by the bridges. The peripheral 9 pair of microtubules are connected and to a central sheath via radial spokes. Radial spokes के थ्रू वो लोग एक दूसरे से यहाँ पे connected हैं central sheath के साथ। ये कुछ points हो गए and then you have to know these 2 things which are quite simple to understand. Dynamic वाला part आपके लिए शायद नया हो सकता है but again ये आप याद रख सकते हो। After this we'll move on to, so this is your flagella. अब फ्लैजेला से आगे बढ़ने के पहले याद रखना कि फ्लैजेला बनता किस में से है। अगर हम बात करें कि फ्लैजेला बन किस में से रहा है तो याद रखना आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं, द सेंट्रियोल्स यू हैव, सेंट्रियोल्स आपके बनाते हैं बेसल बॉडी। दे गेट टू फॉर्म समथिंग नोन एज अ बेसल बॉडी एंड देन बेसल बॉडी में से आपका बनता है फ्लैजेलाइन सीलिया। देन इस बेसल बॉडी में से आपका बनेगा फ्लैजेला and it can also form the cilia as per the requirement. ठीक है, तो याद रखना आपके जो सेंट्रियल्स होते हैं they are the one like they are the parents actually. सेंट्रियल्स जो बेसिकली आपके यहाँ पे they are the parents, इनकी वजह से इनके थ्रू ही आपका फ्लैजेलाइन सीलिया आपको देखने के लिए बनने के लिए आपको मिल जाएगा। तो पहले आपका क्या होता है, सेंट्रियल्स से आपके बनते हैं बेसल बॉडी and then you get to find फ्लैजेलाइन सीलिया forming over here, right? So this is one thing you have to know. अच्छा, one more thing I just want to centrioles are something which will undergo duplication in your S phase. Just correction for that particular thing which I've said. Centrioles जो बेटा आपके होंगे वो आपके S phase के अंदर duplicate करेंगे। Okay, they are the one which are going to duplicate along with the DNA. तो आपके S phase के अंदर ही इन्होंने आपका duplicate करना है। They won't be duplicating in the G2 phase. So centrioles में से याद रखना। अभी तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ बात करें यहाँ पे centrioles में बनेगा basal body and then you can find this can be formed or this can be formed over here. जैसे सेल की रिक्वायरमेंट होगी। सो लेट्स जंप ऑन टू योर सेंट्रियोल्स नाउ। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स ये वाला पार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ सेंट्रोसोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल। याद रखना ये आपको एनिमल सेल में ही मिलना है, ये आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। Centrosomes are going to be absent in plant cell. They are going to be absent in plants, or I would just simply write in plants. They are going to be absent. So plants के अंदर आपको सेंट्रोसोम नहीं मिलेंगे, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स आपको नहीं मिलेंगे प्लांट्स के अंदर। क्या लिखा है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ
barrel shaped centrioles surrounded by a amorphous pericentriolar material. तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि ये है क्या, ये टर्म यहाँ पे क्या कह रहा है. अगर आप इस पिक्चर को देखोगे यहाँ पे, यू कैन वेरी क्लियरली सी आपके ये सेंट्रियोल से बीच में. सो यू हैव अ सेंट्रियोल्स ओवर हियर जो आपके बैरल शेप. सो दिस सेंट्रियोल्स आर गोइंग टू बी योर बैरल शेप्ड. दे आर गोइंग टू बी बैरल शेप सेंट्रियोल्स आपको यहाँ पे मिल जाए. एंड दे आर केप्ट 90 डिग्री टू ईच अदर. इनका जो पोजीशन जो है वो काफी हद तक आपका है 90 डिग्री टू ईच अदर. इस पोजीशन में आपने इनको यहाँ पे रखा हुआ है, और इनको जिस बैग में रखा हुआ है ना, इनको जिस बैग में रखा हुआ है, दैट बैग इज कॉल्ड एज माय सेंट्रोसोम. सो बेसिकली आपने किया यहाँ पे क्या है कि आपके जो सेंट्रियोल्स है उनको आपने एक बैग में रखा हुआ है, एंड दैट बैग ओवर इज कॉल्ड माय सेंट्रोसोम, व्हिच इज सराउंडेड बाय अ सर्टेन काइंड ऑफ एमॉर्फस मटेरियल. दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी कि आपके जो सेंट्रोसोम्स है यहाँ पे, उनको उसके अंदर आपको मिल यहाँ पे देखने के लिए आपके दो सेंट्रियोल्स. याद रखना आपको दो सेंट्रियोल्स यहाँ पे मिलेंगे, राइट. एंड यू कैन फाइंड सम मटेरियल इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो दिस इज समथिंग जो आपके यहाँ पे वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बता रही है. Each centriole, yeah, barrel shaped centriole surrounded by amorphous pericentrinuclear material आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. Now, each centriole is a cylindrical structure. सर एक सेंट्रियोल एक बार फिर से डिस्क्राइब करोगे? हाँ जी, सेंट्रियोल वाला पार्ट ना, ठीक है. सेंट्रियोल वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा ना, see if I have to show you over here, see what we'll get to see ना, सेंट्रियोल के अंदर आपके ऐसे दो स्ट्रक्चर होंगे which will be 90 डिग्री to each other. ऐसा आपके दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाना है. और ये जो दो स्ट्रक्चर होंगे इनको आप रखोगे एक लाइक, यू विल फाइंड देम इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलोगे यहाँ पे सेंट्रोसोम. सो दे विल बी केप्ट इन अ स्ट्रक्चर नोन एज अ सेंट्रोसोम. और ये जो आपके स्ट्रक्चर्स ये बेसिकली आपकी बड़ी हेल्प करने वाले हैं आपके फ्लैजेला, सीलिया, इवन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के लिए जब आपको करना होता है सेल डिवीजन. ठीक है, तो ये जो बीच में आपका जो ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द सेंट्रियोल्स. दे आर गोइंग टू बी द सेंट्रियोल्स. ये आपके हो जाने सेंट्रियोल्स. और ये जो येलो जो आउटर लाइन जो मैंने आपको बनाई है यहाँ पे, दैट इज सेंट्रोसोम. ये है मेरा यहाँ पे सेंट्रोसोम. एंड यहाँ पे आपको बीच में स्पेस में आपको काफी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. यू गेट टू सी सर्टेन मटेरियल्स ओवर हियर. अब जब हम यहाँ पे कहते हैं कि आप इसमें पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस पे कई सारे आपको आयंस मिलते हैं. बेसिकली यू गेट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस कैन बी सीन ओवर हियर, which will have some kind of role to be played, जिनका कुछ ना कुछ रोल होता है आपका to make your microtubules formation या flagella formation के लिए. So get to see certain ions over here, जिसको हम डिटेल में समझते नहीं है, बट याद रखना you get to see few ions. आपको यहाँ पे कुछ ions देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. तो आपको याद रखना है कि आपके सेंट्रियोल्स यहाँ पे and that kept in a bag like structure known as your centrosome. इतना आपको पहले इसके अंदर याद रखना है. ठीक है. Now each centriole is a cylindrical structure आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसका डायमीटर होगा अराउंड 0.2 माइक्रोमीटर. ये इसका रहेगा डायमीटर. एंड देन यू विल हैव अ बैंड ऑफ 3 microtubules called A, B and C are arranged in the wheel form. अच्छा, पहले तो आप ये पहले 4 पॉइंट्स याद रखो. अब आप सोचो इसको एक अलग तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सेंट्रियोल देता हूं आपके हाथ में, अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व द सेंट्रियोल अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा. जैसे हमने फ्लैजेला को देखा था, वैसे अगर हम सेंट्रियोल्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं, देन मुझे क्या देखने के लिए मिल सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो अगर मैं सेंट्रियोल्स को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा. आई विल गेट टू सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओवर हियर. तो जब मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो मैं देखा कि यार यहाँ पे डबलेट तो नहीं, यहाँ पे ट्रिपलेट है. यहाँ पे 2-2 नहीं है, यहाँ पे 3-3 है. सो आई कैन वेरी क्लियरली से यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कैन बी सीन. तो यहाँ पे मुझे माइक्रोट्यूब्यूल के यहाँ पे ट्रिपलेट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए. दैट्स वन थिंग. उनका नंबर कितना है यहाँ पे, अगर मैं नंबर काउंट करता हूँ तो अगेन मुझे यहाँ पे नंबर मिलेगा 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे मुझे 9 मिल रहे हैं. सो आई कैन से आई एम गेटिंग ओवर हियर 9 ट्रिपलेट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, और वो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे मुझे पेरिफेरी के अंदर. आई कैन गेट टू सी देम इन द पेरिफेरी. सो पेरिफेरियल पार्ट में मुझे 9 ट्रिपलेट्स मुझे मिल जाए. क्या मुझे सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे मिल रहा है? कैन आई गेट टू सी माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर? नो, कुछ नहीं दिख रहा सेंटर में, 0 है यहाँ पे. तो याद रखना, क्योंकि सेंटर में कोई मुझे माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, बस एक प्रोटीन है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा,
इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे अरेंजमेंट आपका आएगा 9+0 का। यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट लगता है वो आपका यहाँ पे होगा 9+0 का, यहाँ पे आपका अरेंजमेंट आता है 9+0 का ट्रिपलेट अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो प्लीज ध्यान रखना ये चीज कि जब आप सेंट्रियोल्स को देखते हो आपको मिलता है 9+0 का अरेंजमेंट और वो होते हैं ट्रिपलेट के अंदर। जब आप फ्लैजेला को ऑब्जर्व करते हो आपको मिलता है 9+2 का अरेंजमेंट एंड दैट विल बी द डबलेट। तो ये एक डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना है, जो वो लोग स्टेटमेंट में कई बार पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और स्टेटमेंट के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। सो प्लीज नो दिस थिंग। नाउ ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा अगेन कुछ चीजें यहाँ पे सेम ही है, लाइक यू हैव अ रेडियल स्पूक्स ओवर हियर एज वेल। यहाँ पे भी आपको रेडियल स्पूक्स आपको दिख जाएंगे जो इन ट्रिपलेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल एरिया के साथ। तो सेंट्रल व्हील जो आपकी यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे उसे वो कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा सेंट्रल हब। जो सेंटर में जो हमारा यहाँ पे पार्ट है इसको हमने बोलना है यहाँ पे हमारा सेंट्रल हब। सो प्लीज याद रखिए कि सेंट्रल हब के साथ जो मेरा कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है वो बनेगा अगेन विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पूक्स, राइट। एंड देन यू हैव अ लिंकर प्रोटीन एज वेल। लिंकर प्रोटीन भी आपका यहाँ पे, लिंकर प्रोटीन आपका क्या करता है, ये आपका कनेक्ट करता है दो ट्रिपलेट को। यहाँ पे वहां पे डबलेट को कर रहा था, यहाँ पे ट्रिपलेट को कर रहा है। सो यहाँ लिंकर प्रोटीन। तो ये सब चीजें आपकी बदलनी नहीं है। यहाँ पे भी नेमिंग यहाँ पे करके रखी हुई है, यहाँ पे भी आपको नेमिंग दिख जाएगी। यहाँ पर A, B and C, यहाँ पे भी आपको जो मिल रहा है मैक्रोट्यूबुल्स आपको A, B and C में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगेन इसमें कितने मेरे कंप्लीट है, A, B and C में से कितने मेरे, राइट, ट्रू, वेरी गुड, ओनली वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी कंप्लीट। जो मेरा A है यहाँ पे वो यहाँ पे कंप्लीट है, B and C मेरा यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। इतना ही तुम्हें इसको इसमें लाइक एब्जॉर्ब करके इतना इंफॉर्मेशन तुम्हें इसके अंदर याद रखना है। Let's go back over here and let's see. A band of 3 microtubules A, B and C are arranged in the wheel form. ये आपने देख लिया वहां पे। Centrioles are parent organelles. ये देखो स्टेटमेंट यहाँ पे, Centrioles आपके parent organelles होते हैं। इसमें से कई सारी चीजें आपकी बनती है, which produces basal body, cilia, flagella. इसके साथ साथ Centrioles ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है to form the spindle fiber during cell division. This is something they'll be doing. They'll be forming spindle fiber और ये आपका बनेगा during your cell division. ये आपका बनना है during your cell division. So they will be forming the spindle fiber. That is something which will be having during the cell division in the animal cell. So that's one of the thing you have to know. अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रोल आपको सेपरेटली याद नहीं रखना, आपको सीधा रखना है कि सेंट्रल का काम क्या होता है। यू नो कि इट विल फॉर्म द फ्लैजेला, इट कैन फॉर्म द बेसल बॉडी, इट कैन फॉर्म द फ्लैजेला एंड सीलिया। तो ये एक पेरेंट है जिसमें से ये सारी चीजें आपकी बनेंगी। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्योंकि तब ये आपके स्पिंडल फाइबर बनाएगा जिसको यूज करके आप क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर सकते हो इक्वली। सो ये इसके दो काम होते हैं, तो इसको आपको कोई सेपरेटली अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द रोल्स ओवर हियर। सो ये हो गया आपका यहाँ पे सेंट्रियोल विद इन द सेंट्रोसोम, एंड ये हमने यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे कर ली। वी आर डन विद द फ्लैजेला पार्ट एंड वी आर डन विद द सेंट्रियोल सेंट्रोसोम पार्ट। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Now what we'll do, we'll move on to the next part, that is going to be your nucleus. तो इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे जंप करेंगे वो आपका रहेगा यहाँ पे something other nucleus. So we'll just quickly see all those things. Each centriole consists of a 9 microtubule triplet, 9+0 arrangement हमें दिख जाएगा यहाँ पे, something we all know. The adjacent triplet fibers are interconnected by a proteinaceous linker. C से A हमेशा वहाँ पे connected रहेगा, वो आप देख सकते हो वहाँ पे the C to A is going to be connected over here. That's something you can see. ठीक है, ये अगर C है मेरा यहाँ पे, अगर C है तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो A के साथ है। सो वही उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है। एंड सेंट्रियोल्स आर द पेरेंट ऑर्गेनल्स, जो मैं ऑलरेडी पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस, लेट्स सी द मेन पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल। जब न्यूक्लियस को हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, सो न्यूक्लियस समझने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज वापस से रिपीट करना चाहूंगा और इसमें कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। आपने देखा है कि आपका डीएनए जो होता है वो आपका बनाता है आपका mRNA, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, एंड mRNA आपको बनाता है यहाँ पे आपका प्रोटीन, ये हम यहाँ पे जानते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए मुझे चाहिए होते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कौन पकड़ के लेके आएगा? अमाइनो एसिड को पकड़ के कौन लाता है प्रोटीन बनाने के लिए? कल हमने बात किया था इस बारे में। विच आरएनए? टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए का काम होता है अमाइनो एसिड को पकड़ के लाना ताकि वो हेल्प कर सके आपके प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। सो याद रखना टीआरएनए डज दैट, इट ट्रैप्स द अमाइनो एसिड्स, राइट।
ठीक है, चलो उस चीज को हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू अवर ये स्टोरी की तरफ। ये जो स्टोरी हमने यहाँ पे लिखी है उसको एक बार फिर हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे है क्या, डीएनए में से एमआरएनए आपका बनता है। ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे हुआ इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ये टर्म आपको याद रखना है, दैट यू फाइंड डीएनए में से जब आपका आरएनए एमआरएनए बनेगा इसको हम बोलेंगे हमारा ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए में से हमारा प्रोटीन बनता है इसको हम बोलेंगे हमारा ट्रांसलेशन। This is something you call it as a translation over here. So now you have two terms, you have a translation and transcription. ये सबसे पहले सबने याद रखना है, वापस बता रहा हूँ। जब डीएनए में से आपका बनेगा एमआरएनए, आप उस प्रोसेस को आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए में से आपका प्रोटीन बनेगा तो उसे बोलूंगा मैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि आपका प्रोटीन बन गया, इस प्रोटीन को फोल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रोटीन आपका बन गया, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी फोल्ड करने की? सर आर्यन। आर्यन बेटा, आर्यन आर्या आर्या करेगा प्रोटीन फोल्डिंग। याद रखना, आर्यन हमेशा करता है आपका प्रोटीन फोल्डिंग। इवन अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे उस क्वेश्चन में मेंशन था ग्लाइकोसिलेशन के बारे में, प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में, एंड ग्लाइकोसिलेशन इज समथिंग जो आपका आर्यन प्लस ये आपका गौरी आपका कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर अगेन। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर अगेन। सी, हमने यहाँ पे देख लिया कि आपका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है, ट्रांसलेशन आपका, और ये बस आपका जो प्रोसेस है उसका नाम है। आपको याद ये रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होगा विद इन द न्यूक्लियस। ये आपका होगा विद इन द न्यूक्लियस हमेशा, और आपका जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो आपका हो रहा है इन द साइटोप्लाज्म। पहले तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन अभी याद रखनी है, और ये इंफॉर्मेशन आपको आपके साथ अगले 15, 16, 18 महीने तक आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपका ट्रांसक्रिप्शन जो आपका होता है वो आपका होता है न्यूक्लियस के अंदर, और आपका जो ट्रांसलेशन जो आपका यहाँ पे हो रहा है वो आपका हो रहा है इन द साइटोप्लाज्म। क्या इतना पार्ट आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पर्टिकुलर पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अगर आप चाहो तो मैं वापस से ये चीज रिपीट कर सकता हूँ। याद रखना, डीएनए में से एमआरएनए समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर ट्रांसक्रिप्शन, और ये आपका होगा न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज हैपनिंग विद इन द न्यूक्लियस। और उसके बाद आपका जो एमआरएनए से प्रोटीन जो आपका बन रहा है वो आपका हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय ट्रांसलेशन। तो ये पिक्चर देख के क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है और फिर उसके साथ ट्रांसलेशन होता है? क्या मैं ये कह सकता हूं? Can I say that mRNA मेरा बाहर आ रहा है and then doing the translation वाला part? So surely I can say कि mRNA travel करके न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है in the cytoplasm, right? और देखो, अब आपने इतना सब पढ़ाई कर ली कि आप जानते हो कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन होता है जो ये करता है। एक तो आपका होगा आरईआर, और कौन कर सकता है ट्रांसलेशन आपका आरईआर के अलावा? नहीं, आरईआर के अलावा और कौन सा? प्रोटीन सिंथेसिस ना। ट्रांसलेशन मतलब क्या हो गया? प्रोटीन बन रहा है। ट्रांसलेशन मतलब आपका बन रहा है प्रोटीन। सर एससीआर नहीं, एससीआर नहीं करेगा, आरईआर करेगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, वो आपका करेगा क्योंकि वहां पे राइबोसोम लगे हुए हैं। और कहाँ होते राइबोसोम? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बेटा, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। ये भी तो हमारे रहेंगे जो फ्रीली घूम रहे होंगे वहां पे, जो हमारे वहां पे फ्रीली घूम रहे होंगे, ये भी हमारे प्रेजेंट होंगे वहां पे। दे विल आल्सो अंडरटेक द ट्रांसलेशन, वो भी कर सकते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, हम माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया तो अंदर के अंदर करेगा जो भी करेगा। हम ये बात कर रहे हैं लाइक आउटसाइड इन द साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है वहां पे। क्या रखना, आरईआर का आपका करेगा, एंड देन यू आल्सो हैव अ फ्रीली मूविंग राइबोसोम्स। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दिस, तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है ये चीज को कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जब भी कोई पूछे एमआरएनए फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है? एमआरएनए को यूज करके आप बना रहे हो प्रोटीन, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। कहाँ पे क्या चीज हो रही है वो चीज आपको भूलनी नहीं है, वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ गोइंग बैक ओवर हियर, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस ओवर हियर, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर्स। ओवर हियर यू कैन सी अ टर्म लाइक अ न्यूक्लियर पोर। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका एक न्यूक्लियस है ना, गोल सा न्यूक्लियस है, उसमें ऐसे पोर होते हैं अराउंड 3000 जितने, ऐसे पोर होते हैं अराउंड 3000 जितने पोर्स आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। और इन पोर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो साइटोप्लाज्म के साथ। याद रखना, ये आपके जो न्यूक्लियर पोर्स है,
इनके थ्रू ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हो साइटोप्लाज्म के साथ। तो मैं कह सकता हूं इनके थ्रू ही मेरा mRNA बाहर आता होगा, इनके थ्रू ही मेरा mRNA बाहर आता होगा, और इनके थ्रू ही अगर कुछ एसेंशियल पार्ट है मैं अंदर भेज सकता हूँ। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Right? So please know that Yes. nuclear pores are the Yes, structures sir. जिसके थ्रू I'll get to see कि चीजें एक्सचेंज की जा सकती है। अगर एक न्यूक्लियस को कुछ एक्सचेंज करना है साइटोप्लाज्म के साथ, या साइटोप्लाज्म को जो एक्सचेंज करना है न्यूक्लियस के साथ, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माय न्यूक्लियर पोर्स। तो आपका जो mRNA जो आपका आ रहा है ना बेटा बाहर, दैट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटसाइड यूजिंग न्यूक्लियर पोर्स। आप में से कोई मुझे ट्राई करके बताना चाहेगा कि अंदर क्या जाता होगा? थोड़ा सोच के, यू विल हैव टू थिंक ऑफ इट। क्या सोच के बता सकते हैं कि यार बाहर से अंदर क्या जाता होगा? हाँ जी बताइए, व्हाट डू थिंक, बाहर से अंदर क्या जा सकता है? प्रोटीन। प्रोटीन किसने बोला बेटा? नाम बताइए अपना, नाम नेहा। छोड़ा बच्चों ने, ठीक है कोई बात नहीं। प्रोटीन किसने बोला है? जो कि नेहा। सही आंसर है, इट्स अ राइट आंसर। नेहा। थैंक्स नेहा, नेहा। और थैंक्स अ फ्रेंड ऑफ नेहा who has just yeah. So protein is something which is going to be जो बाहर से अंदर जाएगा। देखो एक चीज याद रखो, प्रोटीन आपका तुम्हारा बाहर बन रहा है ना, जो भी आपका प्रोटीन बन रहा है बाहर बन रहा है, जो भी आपका प्रोटीन बन रहा है वो आपका बन रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हो सकता है कई सारे प्रोटीन बाहर जो बन रहे हैं वो न्यूक्लियस को चाहिए होते होंगे, तो वो प्रोटीन आपके बाहर से अंदर जाएंगे। कई सारे प्रोटीन आपके बाहर से अंदर जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनटू द न्यूक्लियस। सो यस डू नो दैट प्रोटीन समथिंग व्हिच कैन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंड इनसाइड से बाहर जो आपका आ रहा है दैट इज जनरली गोइंग टू बी योर mRNA। अच्छा मैं आपको एक और चीज पूछता हूँ आपका, ठीक है यहाँ पे हम लिख देखते हैं, हमने देखा हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे हम लिखते हैं हियर वी हैव अ साइटोप्लाज्म। आपने एक चीज बोली कि यार ठीक है यहाँ पे आपका mRNA आपका बाहर आ रहा है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एक और चीज बता दो जो अंदर से बाहर आएगी, न्यूक्लियस से बाहर आएगी। अगेन थोड़ा सा सोच के बताना पड़ेगा, हमने कल ही किया था ये चीज। Sir, enzymes. एंजाइम्स तो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन तो बाहर से अंदर आएंगे ना, और क्या आ सकता है न्यूक्लियस से बाहर? थोड़ा सा सोचो, कल ही किया था हमने, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कल ही हमने ये टॉपिक किया था। व्हाट इज समथिंग व्हिच इज फॉर्म्ड इनसाइड एंड कमिंग आउट कैन कम आउटसाइड? पीपल दिस इज वेयर यू हैव टू थिंक, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। कल पहले याद करो कल हमने कौन से टॉपिक किए थे, कल पढ़े क्या था हम लोगों ने? राइबोसोम। हाँ राइबोसोम्स हमने, कहाँ बनता है राइबोसोम्स? बनते कहाँ पे हैं? भूल गए? वी हैव डन दिस। न्यूक्लियोलाई। Yes, sir. न्यूक्लियोलाई इज अ स्पेशलाइज्ड रीजन जहां पे आपके राइबोसोम बनते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, याद करो। न्यूक्लियोलाई इज अ स्पेशलाइज्ड रीजन जहां पे आपके राइबोसोम्स बनाए जाते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये हम कल कर चुके हैं, दिस समथिंग वी हैव डन यस्टरडे ओनली। तो मैं कह सकता हूं कि राइबोसोम्स जो होते हैं इवन दे आर द वन व्हिच कैन मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। क्या ये वाला पार्ट याद आ रहा है सबको यहाँ पे? Yes, sir. यू आर एबल टू रिकॉल दिस थिंग? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे होती है, रखना आपके राइबोसोम्स भी आपके लाइक बाहर अंदर से आपके बाहर यहाँ पे आ सकते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द न्यूक्लियस ओवर हियर। ठीक है, नाउ व्हेन वी डिस्कस न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, तो प्लीज नो वन थिंग, अगेन ये आपका होगा डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। इट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो विल आल्सो गेट टू सी ओवर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। सो इट विल हैव outer membrane and inner membrane, इसकी भी आपको मिलेगी देखने के लिए यहाँ पे outer and inner membrane. So also you get to see the outer membrane, Inner membrane. and your inner membrane, right? तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए काफी क्लियरली मिल जाती है। आपने ये चीज भी देख ली कि यार ये मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारे आपको विंडोज मिल रहे हैं, एंड दोज विंडोज आर नथिंग बट माय न्यूक्लियर पोर्स। तो ये आपकी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा आपका न्यूक्लियर पोर्स, जिसके थ्रू आई कैन फाइंड यू कैन एक्सचेंज द मटेरियल। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए आपके कई सारे न्यूक्लियर पोर्स। अगर हम बात करें प्रिसाइसली देन यू विल हैव अराउंड 3000 न्यूक्लियर पोर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि 3000 जितने न्यूक्लियर पोर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप अपना मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपना मटेरियल काफी इजीली यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो। थोड़ा और अंदर जाते हैं, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो मेन चीज आपको मिलती है दैट इज गोइंग टू बी ए डीएनए।
डीएनए आपको मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर अगर आप अंदर जाते हो तो आपकी जो सबसे मेन चीज जो आपको मिलती है न्यूक्लियस के अंदर, दैट्स योर डीएनए। डीएनए का मैं एक और यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ, समथिंग नोन एज माय क्रोमैटिन। अगर यहाँ पे कोई भी चीज समझ ना आए तो इंटरप्ट करके पूछ लेना, दिस इज ऑल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई। तो अंदर एक और हम यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं, समथिंग नोन एज माय क्रोमैटिन। क्रोमैटिन भी एक और मैं यहाँ पे टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब मैं डीएनए के बारे में आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा। सी, जब भी आपके सामने टर्म आता है क्रोमैटिन या डीएनए ना, याद रखना इट्स लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इज बेसिकली गोइंग टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। ये जो आपका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें मैं अभी यहाँ पे टर्म यूज करूंगा एज अ क्रोमैटिन, ये जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका कंडेंस किया जाता है, जब इसको हम कंडेंस करते हैं तो ये आपको कुछ बहुत बढ़िया बेटा, देन यू गेट टू सी ओवर हियर क्रोमोसोम इज बीन फॉर्म्ड। देन आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। देन आपको यहाँ पे क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखना, जब आपका क्रोमैटिन कंडेंस किया जाता है, जब आप इस क्रोमैटिन को करते हो कंडेंस, ये टाइम पे आपको एक क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। दिस इज व्हाट यू गेट टू सी व्हेन यू अंडरटेक द कंडेंसेशन ऑफ माय क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन में है क्या? क्रोमैटिन में आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल गेट टू सी योर डीएनए। डीएनए तो यहाँ पे आपका है ही, प्लस यू विल गेट टू सी सम प्रोटीन्स। आपको यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स। आपको डीएनए आपको यहाँ पे मिल जाए, यू कैन गेट टू सी समथिंग एज हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये दो चीजें आपको मिलती है आपके क्रोमैटिन के अंदर। सो दीज आर द टू थिंग्स। आपको डीएनए तो मिल ही रहा है जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ यू गेट टू सी सम प्रोटीन्स, और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। हम इन प्रोटीन का रोल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसके और भी कई सारे नाम होते हैं, इनमें और भी टाइप्स होते हैं, वो सब हमें इग्नोर करना है। इसका रोल क्या होता है? ये बेसिकली हेल्प करता है इन द कंडेंसेशन ऑफ माय डीएनए इनटू क्रोमोसोम। ये जो प्रोटीन यहाँ पे लगे हुए होंगे, इनकी मदद से आप डीएनए को कंडेंस करके आप क्रोमोसोम बना सकते हो। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर बहुत सारा रस्सी है, अगर आपके पास बहुत सारा धागा है, धागा अगर आप समझ पा रहे हो, धागा इज समथिंग जो आप यूज करके आप पतंग भी उड़ा सकते हो। अगर आपके पास है, अगर आपको उसे कंडेंस करना है, देन उसे आप रैप करोगे, उसे आप किसी चीज के ऊपर रैप करोगे। अगर आपके बहुत सारा, अगर आपके पास रस्सी है, आप क्या करते हो, उसे लेते हो और आप कोई पेपर बॉल ले सकते हो या कोई चीज और चीज आप ले सकते हो, उसके ऊपर उसे आप रैप करना चालू करोगे। जब आप वहां पे रैप कर रहे हो, वही रैपिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑन द हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। सो डीएनए जो आपका यहाँ पे होता है, उस डीएनए को मैं लाता हूँ एंड उस डीएनए को मैं रैप करता हूँ ऑन द हिस्टोन प्रोटीन, और जब मैं वो रैपिंग करता हूँ बिल्कुल टाइटली, तब मुझे कुछ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता है। दैट्स व्हेन आई गेट टू सी सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन्स का यहाँ पे काम क्या होता है? दे एक्चुअली हेल्प इन द कंडेंसेशन। जो कंडेंसेशन जो वाला जो यहाँ पे पार्ट है, वो करने में यहाँ पे आपको मदद करता है। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप मुझे सोच के ये बताने की कोशिश करो कि ये बनता कब होगा, कब आपको ये कंडेंस करने की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती होगी? When you Meiosis and mitosis के टाइम पे। ड्यूरिंग सेल साइकिल। बिल्कुल सही है, जो भी करे सेल साइकिल, माइटोसिस, दैट्स अ वेरी ट्रू थिंग। व्हेन अ सेल डिसाइड किया रहा हो हमें डिवाइड करना है, वो टाइम पे आपका कंडेंसेशन होते हुए आपको दिख जाएगा। जब भी आपका सेल सोचता है कि यार ये टाइम आ गया दैट आई हैव टू डिवाइड, दैट्स व्हेन वी विल फाइंड दिस कंडेंसेशन विल हैपन। सो यस, ड्यूरिंग द माइटोसिस और मियोसिस you can find this thing happening, or meiosis you can find this event happening, और आपको ये सब होते हुए आपको दिखेगा, and then you can actually get to see a very clear structure over here। तो एक और ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, डीएनए प्लस योर हिस्टोन प्रोटीन्स आर द वन व्हिच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम। क्या इतना वाला पार्ट आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes sir. Yes sir. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस क्रोमैटिन वाला चीज प्लीज याद रखना। ये आपके लाइफ में बार बार रिपीट होगी, यस सर। बार बार रिपीट होगी, अलग अलग तरीके से रिपीट होगी। और सही बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज को अगर आप समझ लेते हो ना सही तरीके से, देन आप काफी डिफिकल्ट चीजों को आप इजिली समझ सकते हो। सीरियस, लाइक इवन वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आपको लाइक वॉक इन अ पार्क लगेंगे, अगर आपको बेसिक चीजें अगर आप यहाँ पे सही लगती है तो, अगर आपको समझ आ रही है तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक और चीज और ऐड करूंगा, क्रोमोसोम को लेके एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अभी हमें न्यूक्लियस देखना है, और लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये बात आप लोग जानते हो काफी अच्छे तरीके से। उसमें जो 22 होते हैं, 22 पेयर जो आपकी रहती है, उसे हम बोलते हैं हमारा ऑटोसोम्स।
नहीं मालूम कोई बात नहीं, यू कॉल देम एज ऑटोसोम्स, राइट। और जो 23rd पेयर आपकी जो रहेगी, जो 23rd पेयर आपकी रहेगी यहाँ पे, that pair can be called as sex chromosome or allosomes. You can even call them as a sex chromosome or allosomes. ये कुछ टर्म्स से आप वाकिफ जितने जल्दी हो जाओ उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, कि ऑटोसोम्स जो पहले 22 पेयर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो 23rd पेयर आपकी जो यहाँ पे होती है वो आपकी होती है यहाँ पे एलोसोम्स की. You can even call them as a sex chromosome. You can even call them as a sex chromosome क्योंकि आपका सेक्स डिटरमाइन करते हैं. They're also called as your sex chromosomes. ठीक है. Now I'll just try to tell you one thing in terms of chromosomes over here. आज की डेट में, आज के टाइम पे अगर तुम नॉट इन डेट, अगर आज के टाइम पे अगर तुम किसी पर्सन में से अगर आप डीएनए कलेक्ट करते हो, सॉरी सेल कलेक्ट करते हो, और उसमें से अगर आप क्रोमोसोम्स देखने की कोशिश करते हो, देन आपको क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे? यू विल फाइंड देम समथिंग लाइक दिस. क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 उसका कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2 अगेन उसका कॉपी, right? Then you can have something like chromosome number 3 and chromosome number 3. तो ऐसे करते हुए आपके 23 पेयर्स आपको देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. पहली 22 तो हम सबके अंदर सेम ही रहेंगी, 23rd पेयर आपके यहाँ पे अलग हो जाती है. तो एक चीज मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूं कि जब आप क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हो ना, तो वो एक्स शेप वाले फॉर्म में नहीं होते हैं. इस फॉर्म में वो डायरेक्टली आपको नहीं दिखेंगे, वो आपको ऐसे ही दिखेंगे. You'll get to see them like एक सिंगल ऐसे like एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, एक सिंगल डंडे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, that will क्रोमोसोम 1, और उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, that will be क्रोमोसोम 1, one more क्रोमोसोम. तो ऐसे चीजें या ऐसे स्ट्रक्चर्स आप ऑब्जर्व करते हो जब आप क्रोमोसोम्स को निकाल के आप देखते हो. तो आपको एक्स वाला पार्ट तब नहीं दिखता. एक्स वाला पार्ट आपको तब दिखेगा जब क्रोमोसोम डिसाइड करता है दैट इट हैज टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. जब आप क्रोमोसोम डिसाइड करता है दैट इट हैज टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, तब आपको वो वाला स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे क्रोमोसोम नंबर 3 को, राइट, तो अगर मेरा क्रोमोसोम 3 जो पेयर है यहाँ पे, अगर ये डिसाइड करते हैं या सेल डिसाइड करता है दैट इट हैज टू रेप्लिकेट, तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी एक और यहाँ पे कॉपी बनेगी और इसकी यहाँ पे एक और एक कॉपी बनेगी. एंड नाउ यू कैन सी थोड़ा बहुत कि नाउ इट अपीयर्स लाइक अ एक्स लाइक स्ट्रक्चर. अब ये थोड़ा मेरा एक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है. क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. है ना? तभी कोई बात नहीं, एक बार फिर रिपीट होगा तभी आपको समझ आएगा. फिलहाल आप इतना याद रख लो, क्योंकि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ते हैं सेल साइकिल, तब ये वापस रिपीट होता है. पर इतना याद रखना दैट क्रोमोसोम कुछ आपके इस तरीके से आपके दिखेंगे. इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व देम, यू आर विल बी लाइक सिंगल स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे वहां पे, और उसकी एक कॉपी होगी. वो एक्स वाला जो शेप होता है ना, वो जब सेल डिसाइड करता है कि डिवाइड करना है, तब क्रोमोसोम अपनी अपनी कॉपी बनाते हैं, तब वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. Apparently you can just know this much part. So that's one thing. Now going back again towards the nucleus, I guess we have some time. Going back to your nucleus वाला एरिया यहाँ पे, तो याद रखना हमेशा chromatin is going to have some histone proteins, और इनका होगा, हेल्प करेंगे लोग for condensation of my chromatin to turn into a chromosome, right? So पैकेजिंग के लिए इनका बड़ा यहाँ पे हेल्प होगा. यहाँ पे इनका बड़ा ये लोग यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, so that you can wrap it around the and you can form the chromosome. Now coming back to my nucleus, डबल वेवलेंथ कवरिंग आपके यहाँ पे हो गई. एंड आपको यहाँ पे जो स्पेस मिलता है, जो न्यूक्लियस के बीच में आपको जो स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स माय न्यूक्लियोप्लाज्म. ये आपका यहाँ पे होगा न्यूक्लियोप्लाज्म. सो बीच में आपको जो भी स्पेस दिखेगा ना न्यूक्लियस के अंदर, जैसे आपका साइटोप्लाज्म था वैसे आपको यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा. ठीक है. न्यूक्लियोलस यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन फाइंड द रीजन ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोलस. जो क्या बना रहा था आपका, व्हाट वाज न्यूक्लियोलस मेकिंग, व्हाट इज नोन फॉर? ये भूलना नहीं है, याद कर लो हमेशा. इट इज समथिंग गोइंग टू बी फॉर्मिंग द राइबोसोम. राइबोसोम किससे बना हुआ होता है? क्या क्या होता है, रेसिपी क्या होती है राइबोसोम बनाने के लिए? क्या दो चीजें चाहिए मुझे? What are the two things I need to have? एक होता है मेरा RRNA, दूसरा क्या होता है? Protein plus RNA. हाँ जी, प्रोटीन प्लस RRNA. ये मुझे दो चीजें चाहिए होंगी हमेशा राइबोसोम बनाने के लिए. याद रखना, इसे मिस नहीं करना है. राइबोसोम बनाने के लिए यू नीड टू हैव टू थिंग्स, दैट्स गोइंग टू बी योर प्रोटीन प्लस RRNA. और राइबोसोम्स आपके हमेशा बनेंगे इनसाइड द न्यूक्लियोलस, राइट? इनसाइड न्यूक्लियोलस यू विल गेट टू सी देम. ठीक है. ये दो चीजें आपको काफी क्लियरली हमेशा याद होनी चाहिए. एक और चीज याद रख लो,
आपने देखा है कि 3 टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए। याद रखना इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वो आपका होगा हमेशा आरआरएनए। आरआरएनए का कंसंट्रेशन आपको सबसे ज्यादा मिलता है सेल के अंदर, प्लीज नो दैट आरआरएनए विल बी द हाईएस्ट इन द अमाउंट। इसका एक रीजन ये भी बिकॉज वो राइबोसोम्स के पार्ट बन जाते हैं, सो राइबोसोम कंज्यूम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आरआरएनए, सो आरआरएनए का कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिलता है सेल के अंदर। याद रखना ये पार्ट, डोंट मिस आउट ऑन दिस। सो राइबोसोम्स आर बीन फॉर्म इन योर न्यूक्लियस। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे दिख रही है, न्यूक्लियस काफी क्लोजली एसोसिएटेड है मेरे ईआर के साथ। अब ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देन आई थिंक यू शुड बी एबल टू रिलेट टू दिस। ईआर के साथ ये काफी अच्छे से एसोसिएट हुआ है यहाँ पे। सो दैट ऑल्सो मीन्स कि जो भी एमआरएनए यहाँ पे बनेगा वो डायरेक्टली जाके बैठ सकता है ऑन द आरईआर, वो डायरेक्टली जाके बैठ सकता है आरईआर के ऊपर और अपना प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे चालू कर सकता है। इसलिए नेचर ने आपको ईआर दे के रखा हुआ है राइट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसका लोकेशन न्यूक्लियस के बाहर इसलिए है ताकि एमआरएनए जैसे ही बाहर निकले उसको ट्रैप कर सके मेरा आरईआर, उसे आरईआर पकड़ सके एंड देन कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ माय प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए आपको ईआर मिलता है राइट आउटसाइड न्यूक्लियस बिकॉज इट हैज अ रोल, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले ऑफ योर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे चलो आपको यहाँ पे क्रोमेटिन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन गेट टू सी ओवर हियर द न्यूक्लियर। हेलो हाँ जी बताइए बेटा। सर, क्या आप रिपीट कर सकते हो? वो मैं नेटवर्क इशू के कारण मैं लेफ्ट हो गई थी। हाँ जी, कौन सा पार्ट रिपीट करना है? अच्छा वो तो पता नहीं होगा आपको क्योंकि अ, आप लेफ्ट हो गए थे, लेकिन क्या क्या आपने जी लास्ट चीज आपने क्या सुनी थी? सर पता नहीं लगा, मैं 51 पे लेफ्ट हो गई थी, 851 पे। ऑलराइट, सो यू हैवंट मिस एनीथिंग। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बेटा ये बात कर रहे हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके बिल्कुल बाहर आपको यहाँ पे ईआर देखने के लिए मिलता है। एंड ये जो आपको जो ईआर यहाँ पे रहेगा इसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये रहेगा दैट दिस इज समथिंग गोइंग टू हैव द राइबोसोम, सो ये बनेगा आपका आरईआर। और आरईआर का काम होता है आपका यहाँ पे प्रोटीन बनाना। सो होता क्या है कि एमआरएनए जैसे ही आपका बाहर निकलेगा, यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, यू विल फाइंड कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे आपका चालू हो जाएगा क्योंकि आपका बाहर आरईआर है। दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज टेलिंग यू ओवर हियर व्हिच इज वेरी मच या अंडरस्टैंडेबल। क्रोमैटिन आपको पता चल गया, न्यूक्लियर एनुलम आपको पता चल गया। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज माय न्यूक्लियर लेमिना? ये कौन है और ये क्या करता होगा? एनीवन हैज आइडिया अबाउट दिस विदाउट लुकिंग एनीवेयर? लेमिना क्या कर सकता है आपका यहाँ पे? एनी टेंटेटिव आइडिया? ओके, आई गिव यू द मूवमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए यार रिप्लिकेशन। ट्राई तो अच्छा था लेकिन और भी कुछ हो रहा है इसका काम। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, लाइक जस्ट हिंट देता हूँ मैं आपको। आपको याद है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ पे लगे होते थे, किसके पास में लगे हुए होते थे? नहीं याद आ रहा? वो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहते थे इंटरमीडिएट फिलामेंट, अगर आपको याद हो तो दे आर कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ही आपका न्यूक्लियर लेमिना में आपके कुछ प्रोटीन होंगे विच आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनका काम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लाइक स्टेबिलिटी देना। ऐसा समझ लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो स्टेबिलिटी मिलती है ना वो आपकी मिलती है हमें न्यूक्लियर लेमिना। सो न्यूक्लियर लेमिना जो आपने यहाँ पे होगा इसका काम होगा टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी टू माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसा समझो कि जो ये लगा के रखा है ना हमने न्यूक्लियर लेमिना, अगर मैं इसको निकाल दूंगा, ना फिर मेरा न्यूक्लियस जो है वो मेरा पूरा कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स मतलब वो पूरा ब्रेक हो जाएगा और एवरीथिंग विल कम आउट। याद रखना, और ये होता है न्यूक्लियर लेमिना अगर आपको स्टेबिलिटी वहां पे दे रहा है टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर इसे मैं ब्रेक करूंगा तो मेरा पूरा न्यूक्लियस कोलैप्स होगा, वो उसका गोल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। आप मुझे थोड़ा बहुत सोच के ये बता सकते हो कि ये कब होता होगा, कब मैं चाहूंगा कि मेरा न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाए, ब्रेक कर जाए, सही तरीके से ओपन हो जाए, पूरा खुल जाए ताकि अंदर की चीज बाहर आ जाए। व्हेन आई वांट दैट टू टेक्स प्लेस? एनीवन कैन टेल? सेल डिवीजन। बिल्कुल सही, जब होता है आपका सेल डिवीजन। जब आपका सेल डिवीजन होता है ये वो टाइम होता है जब मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मेरा न्यूक्लियर लेमिना वहां पे ब्रेक हो जाए, मेरा न्यूक्लियस वहां पे ओपन अप हो जाए और मेरा सारा कंटेंट बाहर आए। सो दैट इज समथिंग विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। नाउ लेट मी हैव अ क्विक चेक ओवर हियर। गिव मी अ क्विक गेस, यहाँ तक अभी हमने क्या क्या किया? वी हैव डन द समथिंग नोन एज योर साइटोस्केलेटन, we have done the intro of nucleus and we have done your centrioles। क्या यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? गिव मी अ क्विक यस इन द चैट। मुझे चैट में फटाफट यस करिए अगर आपको समझ आ रहा है तो। यू जस्ट हैव टू राइट इन द यस इन द चैट।
या अभी तक हमने क्या किया? वी हैव डन दिस सेंट्रियोल्स एंड वी हैव डन दिस साइटोस्केलेटन एंड इंट्रो ऑफ न्यूक्लियस. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वंश, प्रतीक, आपको क्लियर है यहाँ तक? वंश, प्रतीक, जानवी, एवरीवन, केतकी. Alright, even अगर if you go through this thing and if you find कि कुछ समझ नहीं आ रहा, then please go ahead and ask those questions to me. ठीक है? Alright. ठीक है. So what I'll do now, okay, before wrapping up, just want to tell you one thing before we, yeah, thank you everyone. Before we wrap this thing up, I think एक बार हमने, अगर आपको याद हो तो हमने Kahoot किया था, अगर आपको याद हो तो we have done something like a Kahoot in the classroom.